Good morning, ma'am. Good morning, everyone. So, yes, today we're starting class a little late today, but then there were some technical issues, but no issues. Now, so we were doing off studies, and let us continue with what the writer has to say about studies. So this indeed is a very interesting essay, which I think you should all listen to very carefully and listen again and again. जितनी जितनी बार हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हम इंस्पायर्ड होते हैं. The more I read, the more inspired I am. I get. So आपके साथ भी वही है. It will always give you something new to think about. It will always give you something new to do, something creative, and something new to learn. All right. Sharing the screen with you. Okay. So in the last class we saw that how he uses dual words, word phrases वो लेते हैं और pair of words लेते हैं, so that it like straightforward and assertive, elegance and confidence, clarity and emphasis. So this was what we discussed in the last class. This was his way of teaching. This was his way of motivating others. Like he says, crafty men condemn studies. In the last class we did. Crafty people do not like studies. They will say, I can be successful without study. But simple men admire studies, but wise men use them. And let us look at the analysis of this. Analyzing from the essay by Francis Bacon. Study, he says, as an activity, brings joy and enhances our thinking. So what does study do? Study serve for delight. This was his word. But when you are analyzing it, yes, study is as an activity. So this is an activity. What you are doing right now is an activity. What students are doing from home, even that is an activity. And this activity brings joy. Whenever you learn something new, as already I discussed, it gives you joy and enhances our thinking. Just like just now I was saying. So whenever I read this, you're inspired and motivated. Thinking को enhance करता है. एक नई दिशा देता है सोच को. Not only thinking, speaking, writing ability adds charm to our personality. So a lot of things. Studies is one thing, which it is like a light in a dark room. हमारी सोच एनहांस होता है, हमारी स्पीकिंग स्टाइल में बदलाव आ जाता है, हमारी राइटिंग स्टाइल्स में एबिलिटी आ जाती है, और entire personality. The personality says that looking at the person, you will know that yes, this is a person who has spent a lot of time in studying. So, study is a private affair. It means what you learn, you're learning it for yourself.
You learn for yourself. You gain knowledge for yourself. For example, you're sitting at home and learning, reading something. A private affair. It will give you something in privacy. तो कहते हैं ना अकेले जाके पढ़ो, हाँ, सेल्फ वर्क करो, अकेले पढ़ो. So study is a private affair. It helps in relaxation. And when you are alone, अगर आप अकेले हैं, कुछ आपने सीखा है, कुछ नई चीज जान लिया है, आप रिलैक्स हो जाते हैं. It helps in relaxation. It sharpens our intellect. और हमारा जो इंटेलेक्ट है और ब्रेन है वो क्या हो जाता है, शार्पन हो जाता है. मतलब पेंसिल शार्पन होता है ना, कैसे होता है, उसी तरह स्टडीज, हाँ, वो आपको क्या करता है, आपको हर बार आप पेंसिल को शार्पन करते हो तो एक न्यू निब आपको देता है, एक न्यू आपको लेड दे देता है, जो शार्पन दैट हेल्प्स यू टू राइट. सिमिलरली it sharpens your mind, it sharpens your thinking, it sharpens your intelligence. It enables to critical examine issues, critically examine issues. किसी भी चीज को पैरी निगाह से देखने का ये आपको तरीका बता देता है, सक्षम बना देता है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ डॉक्टर. स्टडीज की बदौलत से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्यों बीमारी है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. और अगर आप झोला छाप डॉक्टर हैं तो आप नहीं कुछ कर सकते, नहीं ना कर सकते. हाँ, रेफर कर, वो रेफर भी नहीं कर सकते हैं. वो रेफर क्यों करे, वो जो पैसे वहां जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा. तो दे विल नॉट इवन डू सच थिंग्स. तो पढ़ाई लिखाई से आप सक्षम बन जाते हैं, आप किसी भी चीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वेदर यू आर अ लॉयर, अ टीचर, एन इंजीनियर, एनीथिंग. आप ही बीएससी कर रहे हो तो क्या आप कर लोगे क्या, आपने कहीं से डिग्री खरीद ली, आपको चलो जॉब भी मिल गया, आपके बहुत सोर्सेस है, कहाँ मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस, आपको जॉब लग जाता है. व्हाट अबाउट आफ्टर जॉब लगने के बाद तुम करोगे क्या, तुमको काम नहीं आता था. अगर तुम फिर भी स्टडीज पे आ गए, स्टडीज का सहारा ले लिया, स्टडीज क्वेश्चन है. क्वेश्चन कब बनता है, जब तुम कर लोगे तब तुम आराम करोगे ना. लेकिन उस वक्त भी तुम अगर सुधर जाओगे और पढ़ाई शुरू कर दोगे तो कोई कुछ बदला नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं. लेकिन तुम ऑफिस में अगर काम करना शुरू करते हो और अपना काम तुम शेल्व कर रहे हो, किसी दूसरे को दे रहे हो, ये खर्च कर रहे हो, मेरा ये काम कर दो, उससे नहीं हो रहा तुम ये कर दो, बहुत दिन नहीं चलेगा. मान लीजिए आपका लक अच्छा, आपका चल भी गया, व्हाट अबाउट द इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस. So it helps you to critically examine issues. एक पढ़ा लिखा इंसान प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है because he is capable. However, overintelligence in studies leads to undesirable movements. अब इन्होंने डिसएडवांटेज भी निकाल लिए, मतलब स्टडीज में डिसएडवांटेजेस भी है. मान लीजिए कोई इतना ज्यादा पढ़ाई कर लिया, इतना ज्यादा पढ़ाई कर लिया है, इसको दुनिया से बेखबर हो गया. इतनी थ्योरी. अब तो वो जान के थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की बात अलग थी. ओनली थ्योरी नो प्रैक्टिकल, काम बनेगा नहीं. ओनली प्रैक्टिकल नो थ्योरी, काम बनेगा नहीं. लेकिन somebody थ्योरी भी किया, प्रैक्टिकल भी किया, थ्योरी प्रैक्टिकल किया, बस वही किया ही जिंदगी में और कुछ नहीं किया. सोशलाइज जीरो. अकेले रहेगा, आगे दुनिया में क्या हो रहा है कुछ. आई रिमेम्बर वन पर्सन जिसको धुन सवार थी मुझे आईएएस निकाल लेना, और उन्होंने सोचा कि मैं 1 साल में कमरा में बंद हो जाऊंगा. आई विल लॉक माई सेल्फ इन अ रूम एंड आई विल स्टडी. वो किसी से बातचीत नहीं, बस रूम बंद, वो पढ़ाई, रूम बंद, वो पढ़ाई, वो अंदर, खाना अंदर पहुंचा दिया गया,
उसका अटैच बाथरूम था तो निकलता ही नहीं था, he did not even come out of the room. He shaved his head. कहीं निकलना ही नहीं है, कोई हमको देखेगा ही नहीं। तो बाल बाल पूरा कहीं यहाँ से भी टेंशन नहीं आ जाए, कहीं रुकावट नहीं हो जाए। तो वो सभी करके और 6-7-8 महीने वो बंदा घर में रहा। दिस इज रियल लाइफ केस, ठीक है। और तो यहाँ पे निकाल लेगा, बहुत धोनी लड़का है, वो निकाल लेगा। हाँ तो ये तो आपको केस स्टडी बता रहे हो, which really happened। और मेरे क्लोज सर्कल में वैसे तो पता है, इतने लाइफ सर्कल, इतने लोग हैं कि जानते हैं। एंड ही वाज स्टडीइंग, 6 महीना वो निकला नहीं वो बंदा घर से। बाल मुड़ा ले, जब जब उसका बाल पड़े बाल वो कटा ले। बाल था ही नहीं, कटाने का क्या, बाल ही नहीं। जब भी होता नहीं बिल्कुल। और वो पढ़ते 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 एग्जाम आया, प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, तो कहा हाँ वेरी गुड, ये तो होना ही था। तो आईएएस निकाल। अब इंटरव्यू का टाइम आ गया। अब इंटरव्यू का जो उसका जो फेस किया वो, तो उसने वो थोड़ा सा नर्वस हो गया। इंटरव्यू में वो नर्वस हो गया। और पैनल बैठते हैं ना इसके, और बहुत सारे क्वेश्चंस आती है, लाइव की आती है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो आपको पता चलेगा नहीं कि ये आईएएस से पूछा जा रहा है। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू कोम योर हेयर। अब इस तरह के भी सवाल थे। In a critical situation like this, बनाता हूँ situational questions। मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए कभी, तो उस वक्त आप क्या काम, उस वक्त आप क्या कीजिएगा। And then he gave an example. He gave an example that you are driving a car, a large car you are driving. Okay, a situation दे रहा है उसमें, and then suddenly you see 3 people, a very beautiful girl, and then you see a very old man, and then you see a person who is not well, very sick। 3 बंदों को तुम देखते हो, and you can accommodate just one। एक तुम्हारा दोस्त है, सॉरी, एक तुम्हारा दोस्त है, एक ब्यूटीफुल गर्ल है और एक बीमार आदमी। 3 बंदों को तुम देखते हो सड़क पे, यू आर ड्राइविंग अ कार। वो ऐसे करते हैं, सडनली तुम रुक जाते हो, यू स्टॉप, एंड देन यू सी योर फ्रेंड, योर that beautiful girl and that person who is sick। Now ये क्वेश्चन था, whom are you going to take in your car? Which person will you accommodate in your car? अब यहाँ पर वो सोचा और सोचता ही रह गया। आंसर तो करना है, कुछ तो करना है। तो प्रॉस एंड कॉन्स सोचते हुए उसने कहा कि आई विल टेक द, सोचा कि इसको सोशल बन जाते हैं, आई विल टेक द सिक मैन टू द हॉस्पिटल। वो रिजेक्ट। अब व्हाई वाज ही रिजेक्टेड? आप झूठ बोल रहे हैं। आपका दोस्त भी है, चलो एक ब्यूटीफुल गर्ल थी, फॉरगेट दैट, बट आपका दोस्त है, ब्यूटीफुल गर्ल है और एक सिक पर्सन है, और ये सिचुएशन वो सब जितने भी एस्पिरेंट्स थे सबको दिया। ये बंदा तो रिजेक्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं, बहुत लोगों ने कहा मैं अपने दोस्त को बैठा लूंगा, इसलिए कि फ्रेंड इंडीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अब आईएएस के लिए इंटरव्यू देने यार वो लंबे लंबे भाषण देना शुरू किए, तो वो भी रिजेक्ट हुआ। जिसने सिख को चुना वो भी रिजेक्ट हुआ, जिसने, और सामने तो रिजल्ट नहीं आता है ना, वो लोग बस ओके करके और साइड कर देते हैं।
next aspirant. And जो लोग सिख को चुना वो भी रिजेक्ट, जो लोग दोस्त को चुना वो भी रिजेक्ट. एक बंदे ने कहा yes का इंटरव्यू. Yes, what I'll do? So I'll give the car to my friend. You come and drive this old man to the hospital, and I will call a cab and take that beautiful girl with me. He got the job. He was selected. Practical बात भी सही थी. तीनों काम हो गया ना. दोस्त को गाड़ी भी पकड़ा दी. Take the key and take the man. मदद भी कर लिया. और उन्होंने सोचा कि ये लड़की अकेले क्या करेगी, इसको भी कहीं पहुंचना होगा. I'll call a cab. और उसको बोला देंगे. काम खत्म. IAS क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्वर. और उसमें समझ में नहीं आया सिचुएशन क्वेश्चन भी क्या होता है. These things, when we teach IHS interview handling skills, तो मेरे पास बहुत सारे सिचुएशंस है जो हम आप लोग बताएंगे जब आपका क्लास लेक्चर शुरू होगा. तो IHS का इस तरह के सिचुएशन. HR चाहता क्या है? प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहता है. और आप यू आर एन एस्पिरेंट फॉर IAS. So these things are very interesting. तो too much study से क्या होता है? तुम दुनिया में क्या हो रहा है तुम भूल गए. सोशल लाइफ क्या है? यू डू नॉट नो. तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ा, कोई आया गया, क्या हुआ 6 महीने, तुमने पता करने की कोशिश भी नहीं की. तो वो बाद में अपने को एनालाइज किया कि मेरा क्यों नहीं हुआ. तुम्हें काउंसलिंग के पास वो जाना है, पूछना है क्या मेरे साथ हुआ. तो हम जो एनालाइज कर रहे हैं कि तुमने तो सोशल लाइफ ही नहीं जाना ना. कट ऑफ हो गया. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है आपकी कुछ भी अपने में. इफ यू कैन नॉट हैंडल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्मॉल फैमिली, हाउ कैन यू बिकम अ सक्सेसफुल IAS? Can you? You cannot become successful. So too much studies का जो उन्होंने disadvantages लिखा है. Some people जो इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, बहुत पढ़ लेते हैं, ब्रैगार्ड्स बन जाते हैं. मतलब शो ऑफ करना शुरू करते हैं. वो हाँ वो जताते हैं कि मैं इतना पढ़ा हूँ. वो आपसे ऐसे इंग्लिश में बात कर लेंगे, ऐसे वर्ड ले लेंगे जो कि आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलने वाला है. कहाँ से ग्रीक से आ रहा है कि लैटिन से आ रहा है. तो they become big show offs. हाँ पता चल गया कि तुम बहुत बहुत पढ़े लिखे. हेलो मैम. क्या? यस मैम. वेटिंग रूम में वेट कर रहा है. कॉल किया. This is the time to wait. This is the time to leave. सिर्फ से वेट कर रहा हूँ. Should come on time. So what is happening? Too much studies makes you show off. Once it happened, I came to office. I was working in Simej. I had come here, and there was one faculty. I will not tell you the name. There was one faculty who asked me, "Ma'am, why are you waiting?" So I said, "It was after 6. I was waiting. My driver had not come. I was waiting in the faculty room and doing some work." So he said, "Ma'am, everybody has gone. When will you go?" When will you go? Even he was an English faculty. So when will you go? He said, I'll go in a bit. Okay. So I'll call it a day in a bit. Yeah. समझ गए. I'll go in a bit भी समझ गए. And I'll call it a day भी समझ गए. You're trying to tell me that you are leaving. So trying to show off. मुझे इतनी phrases भी आते हैं. And then he said, "Yeah, why are you waiting now?" I'm saying, "Yeah, I'm waiting for my driver." Then he asked me, "What is another word for driver, ma'am?" Are you talking about chauffeur? Yes.
Yes, you know English. What is this? Too much. If you study too much, no, they will. जैसे हम कैसे बात करें, अगर कोई पूछा तो जवाब दिया, लेकिन जताना कि मुझे इतना आता है, you can do that in the classroom, no doubt. But why do you want to show off? Too much of studies, too much of collecting words, and then only collecting words to speak publicly to show off that yes, this person is a learned person. Yeah. So, like everything, even studies has got its advantages and disadvantages. Advantages numerous, but there are some disadvantages. Too much, all work and no play makes Jack a dull boy. तो इससे तुम पढ़ाई करोगे कुछ नहीं करोगे. Like that man, 6 months inside the room, what had happened? Nothing happened. Nothing really happened. And do you imagine the frustration उसको हुआ होगा when he could not succeed in the interview? So too much studies makes you dull, cuts you off from the world. Overindulgence, मतलब बहुत ज़्यादा in studies leads to undesirable moments. अब ये था ना undesirable moments, मतलब जो उन्होंने सोचा भी नहीं, जो कभी नहीं कोई चाह सकता है कि मेरा प्रीलिम्स एंड मेंस आईएएस में निकल जाना और मेरा और इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होना. तो इतना ज़्यादा frustration, undesirable moments. Setting aside long hours in a day to study will make a man lazy. और तुम लेजी तो हो ही गया था ना, दिन भर वहां रहना, मतलब लंच डिनर ब्रेकफास्ट के लिए भी बाहर में जाना. आप यहाँ बैठे हैं, अब मम्मा आपको आके चाय दे देती है, पढ़ रही है बेटी, पढ़ रही है, हाँ बेटा पढ़ो, ये हॉर्लिक्स आ गया, ये चाय आ गया, पानी भी पापा भी ला के दे देते हैं कि चलो बच्चा पढ़ रहा है, दे देते हैं, आप आराम से एंजॉय कर रहे हैं. एडमिट कार्ड दे देते हैं, फिर मम्मी कॉफी दे दो, मम्मी कॉफी भी दे देती, 12-1 बजे रात में बच्चा पढ़ रहा है. ऐसा हम लोगों ने भी किया हुआ. Even I am a parent, I have done. And I used to keep awake. I used to call my children. Are you awake? Yes. Studying? Are you sleeping? No. And once I checked, मैं उठ के गई बच्चों के रूम में, मैंने देखा my daughter was sleeping. Yes. She was talking, she was listening to me, she was half awake, half asleep, but she was not studying. So I went there और उसके सामने मैं खड़ी बोली, sleeping? No. I said, yes, you are sleeping. No, come mama. No, I just dozed off. You don't tell us. So too much studies makes you lazy, makes you braggart. It means you show off, you try to show off. Overuse of the wisdom is to analyze ordinary, complex, commonplace issues may make the man appear showy and proud. मतलब छोटा-छोटा प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेशंस ले आ रहे हैं तो लोग क्या बोलेंगे, यू आर अ बिग शो ऑफ कर रहे हैं आप, यू अपीयर शोई, यू वांट टू शो ऑफ, यू आर थ्रोइंग योर वेट अराउंड, and it shows that you are proud of yourself. Yes, I can do this and I can speak English, Greek and Latin and French and Chinese. So, and they would then intentionally बोलते हैं, unintentional नहीं होता, जैसे हम लोग कभी स्लिप ऑफ टंग में कुछ निकल जाता है, ऐसे जो एक रूल समझो, जो तुमसे हिंदी में बात कर रहा है उनसे हिंदी में बात करो.
जो तुमसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो तुम इंग्लिश में बात करो। अब ये तुमसे कोई हिंदी में बात कर रहा है, आई हैव सीन people who are not fluent in English, I'm not talking about students should talk 24/7 in English, practice करो। लेकिन वो जो कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस जिनको है, जिनको जो हम जानते हैं इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम कभी उनसे इंग्लिश में बात नहीं करते। बट हमने ये देखा है कि मैं जवाब दे रही हूँ हिंदी में एंड ही इज कमिंग बैक इन इंग्लिश। मैं आई मीन हिंदी बिकॉज आई नो कहाँ क्या बोलना चाहिए, मुझे पता है। जब भी कोई तुमसे इंग्लिश में बात करे, इनिशिएट करे, यू स्पीक इंग्लिश। यू कैन इनिशिएट, यू कैन स्टार्ट इन इंग्लिश, बट अगर आपको रिस्पॉन्स हिंदी में मिल रहा है, तुरंत आप हिंदी में आ जाएंगे। तो क्या होता है, पीपल विल फील यू आर शोइंग। So too much of wisdom will make you overuse of wisdom. Use तो करो, use your wisdom, use your intellect, overuse मत करो। जैसे जानबूझ के उन्होंने पूछा, what is another word for driver man? अब ये तो overuse था। यहाँ मुझे घर जाने की टेंशन हो रही है, ड्राइवर मेरे लेट आ रहा है, and you are talking Greek and Latin to me. नहीं, people who come from outside, ये बंदे बाहर के, people who come from outside, ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि बिहारी cannot speak English. And then they ask me, "Ma'am, are you from Bihar?" We are born and brought up in Bihar. The way you talk, it doesn't look like you're Bihar. Talk to them. ये कॉन्सेप्ट बाहर का है, यहाँ के लोग नहीं, यहाँ के लोग जानते हैं। People who come from outside, outsiders think Biharis cannot speak English. So, but don't show up. I've never showed up. कभी बच्चों ने पूछा, मेरा जवाब दिया। हाँ, that's it for today. अब देखिए इंटरेस्टिंग कितना होता जा रहा है क्लास आपका लिटरेचर का। अदरवाइज मेक एनी क्लास इंटरेस्टिंग विद प्रेजेंटेशंस, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो या फ्रांसिस बेकन का वेरी सीरियस पर्सन का ऑफ स्टडीज हो, केस स्टडीज से आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मैम ने समझाया क्या। ओवर इंडल्जेंस ऑफ स्टडीज से क्या होता है, अब क्या हुआ था, यू कुड नॉट क्रैक द आईएएस। Now I want you to make some presentations in the next class. I would give you the opportunity to talk. Up till now, only I am talking. I would like you to speak also. Right? Okay, students, that's it for today. And we'll meet again with something more on off studies. So it's a very technical chapter. In the coming chapters, we'll see how Bacon describes studies as how does it help you in your maths, and how does poetry help you, how does math help you, and how studies is important. Just like exercise is important for the body, so studies is important for the mind. So we'll take a look into it in the next class.